هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. هو القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں تمام چیزیں بیان کر دی ہیں. پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام مضامین کو اجمالی طور پر بیان کر دیا جو قرآن میں تفصیلی طور پر آئے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں توحید کا درس ہے تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں توحید کا درس دے دیا گیا ہے. قرآن پاک میں آخرت کا تذکرہ ہے تو سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین سے آخرت کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کی ترغیب دلائی ہے تو سورہ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے عبادت کی ترغیب دلائی گئی ہے. قرآن پاک میں سیرت کی ترغیب ہے اور سیرت رسول کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کے تحت سیرت کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قوموں سے ڈرایا ہے، دوسری قوموں کی کجی اور ان کی غلط فہمیاں اور ان کی بے راہ روی بیان کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان تمام کو بیان کر دیا ہے اجمالی طور پر. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا. سورہ فاتحہ خلاصہ ہو گیا قرآن پاک کا. قرآن سورہ فاتحہ کو اسی لیے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام پوری کتاب کا وہ نچوڑ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بڑی بلند پایہ عالی ہے، اس تک کوئی ذات نہیں پہنچ سکتی. وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام چیزوں کا پروردگار ہے، تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، تمام چیزوں کا وہ مالک ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی تعریفوں کے لائق ہے اور دوسری کوئی ذات اس کے برابر تعریف کے لائق نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے، تمام جہانوں کو چلانے والی ہے، تمام جہانوں پر اس کے قبضے قدرت ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو پالنہار ہے تمام عالم کا، تمام جہانوں کا، چاہے وہ چرند کا عالم ہو، پرند کا عالم ہو، انسان کا عالم ہو، سمندر کی مچھلیوں کا عالم ہو، جناتوں کا عالم ہو، انس کا عالم ہو، تمام عالم کا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنہار، تمام کو روزی پہنچانے والا، تمام کو روزی مہیا کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور خود جن پر قبضہ قدرت ہے ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. کوئی بھی اس کی ملکیت سے اور اس کے پروردگی سے اور اس کی قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کچھ کما لیا، ہمارے پاس کچھ مال آ گیا تو گویا کہ ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، اب اس میں
हमारी तरफ से सब कुछ चल रहा है, हम उसके मालिक हैं, गोया कि हम ही ने उसको पैदा किया है। हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीजों के मालिक है, उसी ने पैदा किया, उसी के कब्जे कुदरत में है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की छूट है कि वक्ती तौर पर इंसान उस छूट से धोखा खा जाता है। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, दुनिया में भी वो रहम करता है, आखिरत में भी वो रहम करेगा। दुनिया में जो रहम कर रहा है उसकी रहमत आम है, हर इंसान उसमें शामिल है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, गैर ईमान वाला भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला रोजी उसे भी पहुंचा रहे हैं जो कलमा पढ़ रहा है, और उसे भी पहुंचा रहे हैं जो कलमा नहीं पढ़ रहा है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आम है, हर इंसान उसमें शामिल है। जो अल्लाह का फरमा बरदार है वो भी उसमें शामिल है, जो नाफरमान है वो भी उससे लुत्फअंदोज हो रहा है। अल्लाह की रहमत दुनिया में हर इंसान के ऊपर है, हर इंसान उसमें शामिल है, हर इंसान उससे फायदा उठा रहा है। वो बड़ा मेहरबान है, वो ढील दे रहा है, लेकिन आखिरत में उसकी रहमत आम नहीं होगी, उसकी रहमत ताम होगी। वहां सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले उससे फायदा उठा सकते हैं, उन्हीं को फायदा मिलेगा, उसके अलावा किसी दूसरे को उससे फायदा उठाने की गुंजाइश नहीं होगी। वहां मोहलत खत्म हो जाएगी, वहां गुंजाइश खत्म हो जाएगी, वहां वक्त पूरा हो चुका होगा। ये दुनिया में ही अल्लाह तबारक तआला ने सोचने का, समझने का और गौर करने का और तदब्बुर करने का हमें मौका दिया था, हमें गौर फिक्र करने के लिए दिमाग दिया था। उसके जरिए से हम समझते अल्लाह की किबरियाई को, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह के बुलंद मर्तबे को, और उसके पालने पोसने की तमाम चीजों पर हम गौर फिक्र करते। ये दुनिया को बनाया, ये जहानों को बनाया, ये आसमान को उठाया, ये जमीन को बिछाया, ये पहाड़ों को गाड़ दिया और समुद्रों को चलाया, और उसमें पहाड़ों के जरिए से जमीन को एकदम ठहरा दिया, आसमानों में सितारे को निकाला, सूरज को निकाला ताकि उससे रोशनी हासिल करे, इंसान उसमें रोजी कमाए। और तमाम चीजें, तो ये चीजें अल्लाह तबारक तआला ने पैदा करके ये बयान कर दिया, ये बता दिया कि तमाम चीजों का मैं ही मालिक हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा इसका मालिक नहीं हो सकता है। और इसका पता उस वक्त चलेगा जब क़यामत का दिन होगा, उस वक्त तमाम की बादशाहत खत्म हो जाएगी, तमाम की मुल्कियत खत्म हो जाएगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला मालिक होगा। लिल्लाहि वलिल मुल्कुल यौम, ऐलान किया जाएगा, तमाम बादशाह जमा होंगे, तमाम वज़रा जमा होंगे, तमाम पीएम और वजीर आला, वजीर आज़म सब जमा होंगे, तमाम बादशाह जमा होंगे, सिकंदर भी होगा और बड़े बड़े बादशाह होंगे। लेकिन तमाम जब उस वक्त जमा होंगे, उस वक्त अल्लाह ताला ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बड़ाई है, आज किसकी मुल्कियत है, आज कौन बादशाह है। उस वक्त कोई जवाब नहीं दे रहा होगा, उस वक्त सब सहमे होंगे, डरे हुए होंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला उस वक्त हम सामने आएंगे और कहेंगे बिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की मिल्कियत होगी और कुदरत होगी, और उस वक्त पता चल जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वही आगे फरमाया सूरह फातिहा में, मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। उस वक्त इंसान को अपने किए हुए का पता चलेगा। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है रोज़े जज़ा का, दीन, ये रोज़े जज़ा कमा तदीन तुदान, हदीस पाक में आया। अरबी में दीन कहते हैं बदला, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े जज़ा का भी मालिक है। उस दिन हमारे तमाम किए का पता चल जाएगा। और अल्लाह तबारक तआला आगे कुरान सूरह फातिहा में फरमाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि जब अल्लाह तबारक तआला की बड़ाई भी पता चल गई है, उसकी दीन भी पता चल गई है, उसकी रहमत भी पता चल गई है, और उसकी रहमत आम और रहमत ताम भी पता चल गई है, अब इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की इबादत करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इय्याका
नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करे, किसी दूसरे से मदद ना मांगे। मददगार, मदद मांगना और हाजत रवा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। हम उसके सिवा किसी से हाजत नहीं मांगी जा सकती है, किसी के सामने झोली नहीं फैलाई जा सकती है, किसी के सामने पेशानी नहीं टेकी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत में यही दर्ज दिया गया है कि दुनिया के माबूदों को छोड़कर, दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्ग को छोड़कर उनके सामने अपने भीख फैलाने के बजाय अल्लाह तबारक ताला के सामने आए, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से मांगे। आपकी हाजत को पूरा करने वाला वही जात है, दूसरी कोई जात नहीं है। लेकिन इंसान दुनिया में फंसकर वो तमाम चीजें भूल गया, वो तमाम चीजें उसने भुला दी कि जो अल्लाह तबारक ताला ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में फरमाई थी। गोया के पूरे दीन का खुलासा, पूरे कुरान का खुलासा और तमाम चीजों का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करे, उसी से मदद मांगे। जब इबादत करेगा तो वो मदद मांगेगा, उसकी मदद को पूरा किया जाएगा। और दुनिया में इंसान को मदद की जरूरत है, और जब उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, किसी दूसरी चीज की उसे जरूरत नहीं होगी। तो गोया कि जो इंसान की जरूरियात है वो इसी आयत में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब मदद पूरी हो गई, इबादत भी करने लगे, तब इंसान को आगे बढ़कर अल्लाह तबारक ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह हम इबादत भी कर रहे हैं, आपसे मदद भी मांग रहे हैं, अब हमें वो रास्ता दिखला दीजिए जो रास्ता सीधा हो, वो रास्ता दिखला दीजिए जिस रास्ते पर आपने इनाम फरमाया। और वो रास्ता क्या है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वो नबी का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो शुहदा का रास्ता है, वो औलिया इकराम का रास्ता है। अब इंसान उनकी सीरत को पढ़े, अब अंबिया तो मौजूद नहीं है, क्या करे इंसान? तो सिद्दीकीन के पास आए, सिद्दीकीन भी मौजूद नहीं है, सहाबा इकराम भी मौजूद नहीं है। शुहदा के पास आए, शुहदा का भी हमें पता नहीं चलता है कि कौन शहीद है, वो तो मरने के बाद ही, शहीद होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन शहीद है। अब सिर्फ और सिर्फ औलिया इकराम है जो राह रास्त पर है, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, जो नबी के रास्ते पर चल रहे हैं, शुहदा के तरीके पर अमल कर रहे हैं, सिद्दीकीन के बताए हुए रास्ते पर जमे हुए हैं। उन औलिया का दामन पकड़कर उनके पीछे चलकर हमें सीधा रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये अल्लाह तबारक ताला ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में फरमाया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और इंसान को ये भी मांगना चाहिए कि अल्लाह के सिवा दूसरे से मदद न मांगते हुए, राह रास्त को मांगते हुए, सीधे रास्ते पर चलते हुए उसे ये भी मांगना है कि उन रास्ते पर ना चला जिन पर आपका गज़ब नाज़िल हुआ है, और उन रास्ते पर भी ना चला जिससे आप नाराज हैं। तो इंसान सूरह फातिहा में जब गौर करेगा, फिक्र करेगा, तो खुद ब खुद उसके सामने अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई, किबरियाई, इबादत गुजारने का तरीका, सिद्दीकीन का रास्ता, तमाम की तमाम चीजें खुलकर उसके सामने आएंगी। ये अल्लाह तबारक ताला ने दर्स दिया है सूरह फातिहा में। इंसान जब नमाज में आता है और वो तिलावत करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऊपर से तिलावत करते हुए आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो पालने वाला है तमाम जहानों का, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, जो मालिक है रोज़े जज़ा का। गोया कि उसने नीयत बांध ली, अब उसका तसव्वुर हो रहा है कि जो तमाम जहानों का मालिक है, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। जब ये गुफ्तगू चल रही है अल्लाह तबारक ताला से, उसका तज़किरा चल रहा है, तो गोया कि वो ये समझता है कि मैं अल्लाह के सामने आ गया हूँ, तो वो फौरन उसकी ज़बान से जब निकल रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम आप ही की इबादत, अब आप सामने हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये तसव्वुर जब इंसान लाएगा अपने जहन में, दिमाग में, तो खुद ब खुद उसकी इबादत बनेगी, उसका जिक्र फिर जिक्र बनेगा, उसकी नमाज वो नमाज बनेगी जिन नमाज से
बड़ी बड़ी मुहिम हल हो जाया करती थी, जिस नमाज से बड़े बड़े मसले हल हो जाया करते थे, जिस नमाज से हाजतें पूरी कर लिया करते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। इस सूरह फातिहा से हमें दर्स मिलता है। तो हमें आज का जो ये सिलसिला शुरू किया गया सूरह फातिहा से, आप हज़रात से भी दरख्वास्त है कि इसमें रोजाना जुड़े और कुरान पाक में जो दर्स दिया है वो हम उससे हासिल करें, और उसका तज़किरा जब होगा तो हमारे दिल में कुरान पाक की आज़मत बैठेगी, इबादत का तरीका, रिसालत की, नबियों की रिसालत का पता चलेगा। ये तमाम चीज़ें जब हमारे ज़हन दिमाग में बैठेंगी तो हमें दीन पर चलना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें कुरान पाक को सोचकर समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि। ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا